Hello everyone, my name is Preeti Gupta and today we'll discuss about on this series on our tutorials and on other topics. Okay, so let us start. Wait for a minute, I'm sharing my screens. Okay, just a minute. Yes. Today motivation is knowledge will bring you the opportunity to make me difference. This is the midday motivation on yourself. So make it mind and move to the point. Okay. Today topic is Java switch. Java switch statement. What is this? Instead, Java switch statement, instead of writing many if else statement, means that instead of writing if else statement, we can use this switch statement. हम जैसे कि if else की जगह पे हम we can use switch statement, we क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं for many conditions. Okay. This switch statement select one of the many code blocks or block to be executed. ये switch statement क्या करता है, ढेर सारा ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करता है, एक साथ क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. This is the syntax of switch statement. Switch expressions, then case 1 inside the code block, then break, then case 2 inside the code block, then break, then this is the default value. If none of these are true, then default value will be printed. Like else value, we can see that instead of if for example previous tutorial हमने क्या देखा था, if अगर true false होता है तो क्या करेगा, else value क्या करता है, execute करता है, right? So this is the main. This is how it work. ये work कैसे करता है, देखते हैं. This switch expense is evaluated once. ये स्विच expense क्या करता है, एक बार इवेल्युएट होता है, एक बार देखता है और फिर क्या करता है, एक्सप्रेशन को फिर क्या करता है, कंडीशन देखते फिर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है एक एक. द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ ईच केस. एक एक वो अभी हमने बताया कि वो क्या करता है, कंपेयर एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंपेयर करता है. एक्सप्रेशन मीन्स कंडीशन को कंपेयर करता है, कौन सी वैल्यू मतलब कि कौन सी वैल्यू सही है, अगर जो वैल्यू सही है उसको क्या करो, उसको ब्लॉक ऑफ कोड पे क्या करो, एग्जीक्यूट करवा दो. Is there is a match, the associate block of code is executed? Yes. If not, then we have to move it. If inside the break switch statement, none of case will be true, then we have to print in default the value. We can say that break and default is a keywords are optional, and we will discuss that in this chapter. Okay, इसके बाद में मैं बाद में discuss करूंगी. For example, we can see that, just a minute, I scroll down. Um, Initialize integer type stay is a variable. We can assign the value is 4, right? Day is equal to 4 and switch day. Because this is the expression. I can't compare any conditions. Expression is this. Because I initialize the variables, day is the variable, inside the variable I assign the 4. Okay? And then we can check the expression day. Check one, case 1, system dot outer println. If day is equal to 4, then Monday is print, we have to Monday. Okay. Case 2, system dot outer print and Tuesday, then break. Case 3, system dot outer print and Wednesday, break 4. Like that we can see, if day is equal to 4, the 4 times we have to print it, right? Thursday, because day is initialized to 4. The 4 times case 1, inside the case 1 block will be executed. Inside the day is equal to 4 will be a case 1. Case 1 is not a executed, because case 1, inside case 1 day is equal to not a 4, day is equal to 1, and case 2 inside day 2 is equal to 2. Then 4 will be this. Then print output will be Thursday. We can see, because day is equal to 4. We can see that. Try to yourself. Just a minute. You can just run that. Okay, I can see. I just changed this. Day is equal to 2. तो आप जस्ट वीडियो को पॉज करो एंड सी व्हाट इज द डे इज इक्वल टू क्या आएगा, मन ट्यूसडे, बिकॉज केस 2 is 2, then day is equal to
ट्रू। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी हम डे में करेंगे ना, तो केस वन में केस वन तो नहीं है डे के बराबर, राइट? तो केस टू मिलता है ना इसके, ये टू के बराबर। तो अब ऐसे देखना है इसका, ठीक है, लाइक दैट यू कैन सी ट्यूजडे सिस्टम नॉट, यस, स्क्रॉल डाउन। ओके, ब्रेक कीवर्ड क्या है बताते हैं। ब्रेक, ब्रेक इज अ कीवर्ड, जावा रीच अ ब्रेक कीवर्ड, इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक. This will stop the execution of more code and case test inside the block. This break keyword is out of the switch block. Like break keyword is mostly used in case block पे use होते हैं mostly. Okay, this will stop the execution more code and case test inside the block. Which a match is found, like whatever statement match the match and the answer will be found, this will be and the job is done, the time this time the block break block break sorry break keyword will be break. Okay, there is a no need for testing. Oh, okay, for example, if this is the above example, like day is equal to 4 and this answer will be found, then we can inside in print ln inside break keyword we have to use it, right? Inside break keyword we can't search on them ki whatever, because I already found the answer, right? So हमें दूसरे केस को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, right? इस वजह से ब्रेक कीवर्ड का यूज होते हैं, सिंपल लाइक दैट. The break can save lots of execution time because it ignored the execution all the rest of the code in the switch block. Because break keywords लॉक से टाइम को एग्जीक्यूशन टाइम को क्या करता है, ओवरकम करता है, सेव करता है. ओके, बिकॉज अगर अगर कोई आंसर हमको फाउंड हो गया तो हमको दूसरा केस ब्लॉक हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं. अगर हम चेक करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेंगे, टाइम टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होंगे, इंक्रीज होगी. तो दैट्स व्हाई कि इस ब्लॉक ब्रेक स्टेबेस ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, टाइम को क्या करते हैं, सेव करते हैं, मीन्स की ओवरकम करता है. ठीक है, मूव टू द पॉइंट. You can see case 6 and case 7. Okay, case day is equal to 4. तो ये सब हमें क्या करेगी, ये सब वीकेंड जो लुकिंग फॉरवर्ड दिस वीकेंड, ये सब तो ये केस 6 एंड केस 7 हमको लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, बिकॉज ये सब चेक करने करेगी ही नहीं, डायरेक्ट हमारे पास कहाँ आएगी, डिफॉल्ट कीवर्ड. डिफॉल्ट कीवर्ड में जो भी आउटपुट होगा उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे, राइट? तो या दिस इज note that if default statement is used to last statement in the switch word, it does not need to break. Default statement is last statement हम बोलते हैं. अगर आप लाइक एक स्विच केस लिखो, केस वन केस टू एक लिखो, दो लिखो या मल्टीपल टाइम्स लिखो, बट डिफॉल्ट कीवर्ड इज a last option we can use on them if you are using switch case. Okay, and default keyword is basically no need to default to break. डिफॉल्ट कीवर्ड में ब्रेक की यूज नहीं पड़ती है, बिकॉज इट्स नॉट अ मैंडेटरी, इट इज ऑलरेडी अ कीवर्ड, दैट्स व्हाई. ओके, move to the exercise. Switch extended used to select one or many code block to be executed based on the value of expression. Yes, let's move to the point. Next questions. Insert the missing part to complete the switch statement. Int a is equal to 2, in day is equal to do, then what will we insert that? Expression. Expression is what? Day. Then case 1, case 2. System dot order in, then sorry, break. This is the break keyword. Just a minute, scroll down. Submit. Right? Next question, what will be? Yes. Again, day, case 1, case 2, break, and last one is what? Sorry, spelling mistake. Break. Last one is default keyword, default. So default, scroll down, submit. Congratulations, we have completed this exercise.
Okay, move to the another while loop. Okay, while loop होता क्या है? Loop can execute the block of code as a specified condition is reached. इसको जूम कर देती हूँ. लूप इज बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम स्पेसिफाई, जैसे कोई भी कंडीशन अगर आए, जैसे कि मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स हमें प्रिंट करवाना पड़े, तो उसमें क्या, उस टाइम में हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं. लूप इज हैंडली बिकॉज दे सेव टाइम, रिड्यूस एरर्स एंड दे मेक कोड मोर रीडेबल्स. मोस्टली लूप का कैसे यूज करते हैं, लूप इज बेसिकली यूज फॉर time will be overcome, reduce errors, and the make code will be readables. Okay, and move to the what is while loop. While loop के क्या है? While loop is through the block of code. We also a block of code and long as specify condition in true. Look, while loop क्या होता है? Syntax when we have to see that while is inside the conditions. Condition is true, then will while loop will be executed. This condition is for value not to be executed. Okay, in this example below, the run over the again variables is I equal to 0. 0 will be inside I is equal to 0 as an okay, and check I is less than 5, 0 is less than 5, yes true, then print of I. Okay, then I is equal to plus. Okay, just a minute. Right now I is equal to 0, right? Yes. Then check the condition. Then check the condition. I is like 0 is less than 5, right? Is true or false? Is true. Then move to the block of code. System dot outer print ln. Then just a minute. Then system dot outer print, and then output will be just आउटपुट इज व्हाट. आउटपुट अभी एक में आउटपुट क्या आया? 0 is less than 5 मीन 0 is equal to 0. अभी ना 0 आ गए, ठीक है. फिर आई का वैल्यू क्या हो गया? फिर ये आई कहाँ गया? यहाँ पे, राइट, यहाँ पे, दिस लाइन. ओके, देन आई प्लस प्लस, देन अभी आई का वैल्यू कितना हो गया? 0 से 1. ओके, देन अगेन कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे यहाँ पे. फिर चेक करेंगे 1 is less than 5, यस ट्रू. देन अगेन क्या करेगा? प्रिंट कर देगा आई का वैल्यू. अभी आई का वैल्यू कितना था? 0, राइट. अभी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1. देन अगेन क्या करेगा? अगेन ये मूव टू द आई, आई प्लस प्लस, देन आई का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा? ट्रू. 1 से क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि अब पहले क्या था? आई का वैल्यू 1 था, अभी होके क्या हो गया? 1. आई प्लस प्लस मीन्स दैट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. It's the post increment. Okay. And sorry. Then क्या करेगा? फिर कंपेयर करेगा. 2 is less than 5. Yes, it's true. Then move to the third line. Then I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2. ओके, देन फिर इंक्रीज करेगा. फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंक्रीमेंट 2 था पहले, अब 1 इंक्रीज हो गया, मतलब 3 हो गया. 3 इज लेस देन इक्वल टू 5. यस 5. देन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा. फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. 1 इंक्रीज हो गया. देन क्या करेगा? 4 इज लेस देन 5, यस ट्रू. देन आउटपुट क्या आएगा? 4. ओके, देन अगेन इंक्रीज करेगा. आई प्लस प्लस, आई इक्वल टू 5. ठीक है. 5 इज लेस देन 5. 5 is less than 5. 5 is less than 5. False. 5 is less than 5 नहीं, 5 is equal to 5 है, राइट, नॉट लेस देन 5 है. तो ये क्या करेगा? ये ब्लॉक ऑफ कोड के पास जाएगा ही नहीं, ये लूप ही क्या करेगा? हमें एग्जीक्यूट कर जाएगा. ये लूप चलेगा ही नहीं, और ये लूप क्या ब्रेक होके ये क्लोज ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा. ठीक है, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, तो हमारा जो भी आउटपुट जो आया, ये आउटपुट कितना आया लास्ट में? 4, 0, 1, 2, 3, 4. हो, ट्राई इट योरसेल्फ. ये आया होगा.
और एलेजर इसको जस्ट ओके रन। ये आया। अभी मैंने कितना किया था, 1 0 1 2 3 4 किया था, ये आया। 5 तक क्यों नहीं चला, बिकॉज इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अगर इक्वल टू नहीं रहता तो 5 ही प्रिंट हो जाता। ठीक है, मूव टू द पॉइंट। घड़ियाल की एक्सरसाइज की तरह, हाउ मेनी टाइम्स विल फ्लोइंग लूप एग्जीक्यूट इंट आई इक्वल टू 0 व्हाइल। अभी हमने पढ़ा कितने टाइम्स चलेगा, दिस इज द 4 टाइम्स, राइट। राइट, ओके। Print I as long as I is less than 6. Then while print I print I long as I is less than 6, then ये what will be, ये दे I plus plus। ठीक है, submit, correct। int I is equal to 0, I equal to 1, 1 equal to 1 है, तो क्या प्रिंट करेगा, उप्स। ओके, इसमें अगर इंक्रीमेंट नहीं दिया, बिकॉज उप्स इज प्रिंटेड 1 टाइम्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीमेंट कोई दिया नहीं है पोस्ट स्टेटमेंट, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार प्रिंट करके क्या करेंगे, वो लूप से बाहर आ जाएंगे। रॉन्ग आंसर। ओके, इट्स इनडिफिनिट लूप, बिकॉज ये इनडिफिनिट लूप इसलिए था, मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओ जस्ट अ मिनट, क्योंकि वहां पे जैसे कि यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया ना कि आई प्लस प्लस, वहां पे दिया नहीं था, तो मीन्स दैट वो जब तक कंडीशन कोई देगा नहीं ना, वो इनडिफिनिट तक वो चलता जाएगा, जब तक उसको आप क्या करोगे, कंडीशन डाल के उसको ब्रेक नहीं करोगे तब तक। यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया कि आई प्लस प्लस, वहां पे कोई कंडीशन नहीं डाला, लाइक वहां पे कोई बताया नहीं कि आप कब तक आपको एग्जीक्यूट करवाना है, दैट्स व्हाई वो आउटपुट का क्या आया, इनडिफिनिट लूप्स। ओके, मूव टू द पॉइंट। डू वाइल लूप क्या होता है, सेम ऐसे ही होता है। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप इज वेरिएंट ऑफ वाइल लूप, the loop will execute of the code once, the loop will execute the code block once before checking if the condition is true, then will repeat the loop as long as condition true। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, डू डू वाइल लूप में क्या है और वाइल लूप में क्या डिफरेंस मैं बताऊंगी। डू डू में ये है कि आपका कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, बट एक बार ब्लॉक ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट एक बार होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले हमने डू डू लगाया, आफ्टर दैट मैंने क्या किया, एक वाइल लूप की इनसाइड में क्या किया, कंडीशन किया। यहाँ पे तो मैंने कोई कंडीशन नहीं डाला, राइट, यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं है, तो क्या करेगा, फर्स्ट क्या करेगा, डू क्या करेगा, डू वाइल मतलब कि क्या करेगा, प्रोग्रामिंग में कोडर क्या करेगा, कंपाइलर पहले डू के पास जाएगा और इनसाइड डू वाइल जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, मंस की वंस टाइम वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ अगर कंडीशन एक बार फॉल्स हो गया तो वाइल लूप के पास जाएगा ही नहीं, जो भी डू के पास जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स क्या, डिफिनीशन का मतलब ये हुआ कि डू वाइल का मतलब ये हुआ है कि एक कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, बट एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा विदाउट यू चेकिंग द कंडीशन। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल में क्या हुआ, वाइल लूप में क्या हुआ कि आपको कंडीशन चेक कर, आपको कंडीशन अगर ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर फॉल्स हो तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। पर डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में ये है कि अगर आपका अगर कंडीशन जैसे कि वाइल लूप का डू, तो डू में एक होता है कि आपका कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड हो, कोई कुछ भी आप प्रिंट करवा रहे हो डू में, तो वो क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर दैट वी हैव टू चेक इन द कंडीशन ना। बट वाइल लूप में क्या होता है कि आपका कंडीशन चेक करने के बाद ही आपको कोई भी कोड एग्जीक्यूट, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या होगा, मतलब कि आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज डू में क्या होता है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, बट एक बार तो एग्जीक्यूट होना है भाई, ऐसा। ठीक है,
तो दिस इज द मेन सिंटेक्स ऑफ डू एंड व्हाइल। समझ में आ गई? एग्जाम्पल की तरफ करते हैं। देखिए कि आई इक्वल टू 0, राइट? तो सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट एंड आई, तो ये क्या हो जाएगा? आई, अब भी देखो डू के अंदर क्या हो गया, एक बार तो कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया, आई इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स दैट सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट, आई इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। देन आफ्टर दैट कंडीशन क्या हो गया, देन आई प्लस प्लस, आई इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, राइट? देन डू डू वाइल को आई इक्वल टू 1 हो गया, देन इसको ब्रेक मतलब कि एग्जिस्ट होने के बाद वाइल लूप के पास जाएगा, 1 इज लेस देन 5, यस, इज इट लेस देन 5? देन क्या करेगा, ये फिर से जाएगा ये यहाँ पे आई प्लस प्लस पे। देन आई इक्वल टू पहले क्या था, 1 था, फिर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। देन देन यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्या आई इक्वल टू 0 था, तो अभी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। देन फिर क्या करेगा, जस्ट अ मिनट, ऐसे होंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई यहाँ पर वो 0 प्रिंट हो गया, राइट? मैं बताती हूँ आपको सिंपल में, घबराना नहीं है। देखो अभी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या था, आई इक्वल टू 0 था, तो आई इक्वल टू 0, अभी हम इस स्टेटमेंट डू के पास गए, अगर प्रिंट करवाना था, क्या है प्रिंट एलन, क्या है आई इक्वल टू, आई इक्वल टू 1, सॉरी 0, आई इक्वल टू 0 प्रिंट हो गया। फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, 0, फिर आई क्या होगा, आई इक्वल टू 0, फिर ये क्या हो गया, 1 2 3 4 लाइन के पास गया, और फिर क्या हुआ, आई इसको प्री इंक्रीमेंट, तो आई का वैल्यू अभी क्या था, 0 था, फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट? फिर डू क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, फिर व्हाइल लूप के पास जाएगा, 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, यस ट्रू। देन ये फिर कहाँ जाएगा, डू के पास, ये फिर कहाँ जाएगा, यहाँ ऐसे, ये ये फिर कहाँ जाएगा, डू के, ठीक है, सॉरी, ये फिर कहाँ जाएगा, डू के पास, राइट? ये फिर कहाँ जाएगा, डू के पास, राइट? डू के पास जाने के बाद, जस्ट अ मिनट, हाँ, डू के पास जाने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, सिस्टम डॉट आउटर प्रिंट एलन, तो यहाँ पे फिर डू के पास जाए, आई इक्वल टू अभी क्या था, 1, तो आउटपुट में क्या आ गया हमारा, सॉरी, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज, यस, टेस्ट, हाँ, आउटपुट में अभी क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। फिर क्या करेगा, आई प्लस प्लस पे जाएगा, आई प्लस का क्या, आई इक्वल टू 1 है, तो फिर इंक्रीज होके क्या आ जाएगा, 2, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, 1 से क्या आ जाएगा, 2, फिर से करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। देन अगेन जाएगा यहाँ पे, फिर डू के पास जाएगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसे ये क्या करके लूप चलते जाएंगे। तो हम इसको बताते हैं, इसको इरेज करने के बाद इसका आउटपुट में बताती हूँ, यस, ट्राई कर, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया, ये 0 के पास जाएगा, फिर प्रिंट 0 हो जाएगा, ये हुआ प्रिंट, आई प्लस प्लस हुआ, फिर कंडीशन चेक किया, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यस। देन ये डू के पास जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना था, 0 से फिर 1, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि आई, तो फिर यहाँ आएगा, फिर आई का वैल्यू कितना था, 1, तो वहां पे 1 प्रिंट हो गया। फिर ही आई प्लस प्लस, फिर आई का वैल्यू 2 हो गया, फिर ही डू आई से एग्जिस्ट होके, फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू। देन फिर डू के पास जाएगा, फिर 2 के पास क्या होगा, अभी 2 के आई का वैल्यू कितना था, 2 था, तो 2 प्रिंट हो गया, राइट?
टू फिर होने गया, फिर आई प्लस फाइव, टू के वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू कितना हो, थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव, यस फाइव, देन आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री, फिर आई इक्वल टू प्लस प्लस, फिर आई इक्वल टू क्या होगा, फोर हो जाएगा, फोर इज लेस देन इक्वल टू फाइव, यस फाइव, देन फिर उनकी प्रिंट कितना हो जाएगा, फोर, तो प्रिंट फोर हो गया, फिर आई इक्वल टू फाइव प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना होगा, फोर से क्या होगा, फाइव, फाइव इज लेस देन इक्वल टू फाइव, नो, बिकॉज इज फर्स्ट, तो ये क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, ये डू वाइल लूप के पास ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो वन टू थ्री फोर, दिस इज द मेन, ठीक है, समझ में आ गई, exercise की प्रैक्टिस करते हैं। What is difference between loop and do while loop? Do while loop execute at once, but while loop might not be executed. Yes, it's true. और भी पढ़ लेते हैं। और while loop execute at once and do while loop might not be. It is not true because do पहले अगर do आ रहा है do while आया तो do के बाद inside जो do while में जो भी कोड होगा ब्लॉक ऑफ कोड वो एक बार एग्जीक्यूट हुआ देन आफ्टर दैट कंडीशन चेक करेगा ना, बट while loop में क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होगा फिर एग्जीक्यूट होगा, हुआ, ये आंसर सबमिट करते हैं, करेक्ट, ओके, let's move to the point, do while loop do print I as long as I is less than or equal to 5, then do I plus plus, then what will we write, while condition, then we have to see that this is a submit and correct answer, that's it. Again, what will be happen, we run the following code, int I is equal to 0, do simple that I is less than or equal to 5, then I is equal to 0, 0, I is printed to 4 times. Yes, I is printed to 4 times because I is not printed 5 times not because अगर 4 5 is less than equal to 5 आया तो क्या होगा, 5 प्रिंट ही नहीं होगा, राइट, कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो आंसर, ओके, 5 टाइम्स, प्रिंट कितना टाइम्स होगा, आउटपुट नहीं पूछ रहा है, प्रिंट तो 5 टाइम्स होगा ना, 0 to 4, I is print to, ओके, जस्ट वी कैन सी दैट यहाँ पे हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया है, तो जहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं दिया हमें पहले ही बताई तो वहां क्या होगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कितना तक प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, मूव टू द पॉइंट, रियल लाइफ एग्जांपल वी कैन सी, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, while condition is less than equal to 3 is greater than 0, yes, then print countdown, तो काउंटन का वैल्यू क्या है, थ्री है, तो थ्री क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर कहाँ पे यहाँ पे जाएगा, काउंट इजकल टू माइनस माइनस, काउंट इजकल टू माइनस माइनस, ये डिक्रीट हो रहा है, तभी थ्री का वैल्यू कितना था, काउंट डाउन का वैल्यू कितना था, थ्री था, अब भी कितना हो गया, टू, ये आप ध्यान में रखो, टू हो गया, फिर क्या आ जाएगा, वाइल लूप से क्या होगा, जस्ट अ मिनट, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये वाइल लूप के ऊपर जाएगा, फिर देखेगा कि टू इज ग्रेटर देन जीरो, यस ट्रू, देन फिर क्या करेगा, कंडीशन काउंट डाउन इक्वल टू क्या, अभी कितना था, थ्री से क्या होगा, फिर थ्री आया, फिर क्या होगा, टू आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर काउंट डाउन इक्वल टू वन, टू थ्री था, टू था, फिर अभी क्या हो गया, वन, क्यों घट गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस ट्रू, देन फिर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन इज लेना, फिर थ्री टू वन, पहले थ्री आया प्रिंट, फिर टू आया, फिर अभी वन आया, फिर वन, जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नो, जीरो इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, ये फॉल्स हो गया कंडीशन, ठीक है, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये लूप क्या होगा, ये लूप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट क्या करवा लेगा, दिस वन, हैप्पी न्यू ईयर, तो हमारा कितना क्या क्या प्रिंट हुआ, थ्री टू वन एंड हैप्पी न्यू ईयर, ओके, जस्ट अ मिनट वी कैन ट्राई इट योरसेल्फ, ये आउटपुट आप देख लो, रन, थ्री टू वन एंड हैप्पी न्यू ईयर, कूल, या, जस्ट अ मिनट आई रेज ऑल द थिंग्स,
Not looking good. Yeah. Move to the point. Again, we can see that print Yazi if this dice number is 6. If dice is equal to 6, then what dice is less than equal to 6, 1 is less than equal to 6 is true. If 1 is less than 6, then print no Yazi. Yes, print Yartzi. Okay. Then dice is equal to die plus 1. Simple. This is the simple what simple example of this for if dice is equal to 1, then we have to check this. 1 is less than equal to 6. Yes, it's true. Then move to the f block and again check 1 is less than 6. Yes, then print inside the quarter block. We have to print not eg. Else, if condition this condition will be false, then we have to move to the else block. And inside else block, we have to whatever code will be there, we have to print on this. And if all the things will be false, then return dice is equal to dice plus 1. Try to yourself, we can see. No Yaji, print 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. And last one is of this condition will be false, then we have to print on this white C. Okay, yeah, uh, that's it. Today will be almost there. Okay, tomorrow we will discuss about for loop and how to use in for loop and what is this for loop and how can use on them. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much. Thanks for watching my videos and keep calm, keep patience and never give up. Keep yourselves and keep motivated and always be take care of yourself, especially your health also. Thank you so much. Bye bye.